پر اب آپ یہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں، سی سی ٹی وی ویڈیو 7 دھماکے کی، اور اس میں جس شخص کو انسرکل کیا ہوا اس کو غور سے دیکھا جائے تو یہ شخص آگے بڑھ رہا ہے، اور یہ سی سی ٹی وی ویڈیو ہے 7 دھماکے کی۔ یہ زوردار دھماکہ ہوا تھا، خودکش حملہ تھا، اور اس میں 88 افراد کی جانیں چلی گئی تھی۔ بالکل، یہ ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہیں، ملاحظہ کر سکتے ہیں اپنی ٹی وی سکرینز پر۔ ڈائریکٹر نیوز جیو نیوز رانا جواد صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ رانا صاحب کہیے گا، اس سی سی ٹی وی ویڈیو کو دیکھتے ہوئے تحقیقات میں پیش رفت ہوگی، مدد ملے گی، واضح ہے یہ؟ ڈائریکٹر نیوز جیو نیوز رانا جواد صاحب سے رابطہ کریں گے اور اس ویڈیو سے متعلق جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیا اب سیکیورٹی اہلکار پولیس اب کس زاویے پر تفتیش کر رہی ہے۔ یہ ویڈیو آپ ملاحظہ کر رہے ہیں جیو نیوز پر، رابطہ ہمارا بحال ہوا ہے ڈائریکٹر نیوز جیو نیوز سے۔ رانا صاحب کہیے گا، تحقیقات میں کوئی پیش رفت ہوئی ہے، واضح ہے یہ، اور کتنی لمبی ہے یہ ویڈیو؟ دیکھیں، یہ تو بہت ہی کلیئر ہے کہ وہ آئیڈینٹیفائی ہو رہے ہیں، جو سوئسائڈ بمبر جس کے متعلق کہا جا رہا ہے، اور اس کا قد، اس کی شکل، اس کا حلیہ، جس طرح کے اس نے جاکٹس پہنے ہوئے ہیں، یہ پولیس جو ہے اس نتیجے میں پہنچی ہے کہ یہ وہ خودکش حملہ آور ہے جو انٹر ہوا ہے۔ اور اس نے، آپ اگر دیکھیں کہ پہلے اس نے انٹر ہونے کی کوشش کی، جہاں پہ ایک پولیس والا کھڑا ہے، اس کی دو راستے ہیں، ایک سے عورتیں اندر جا رہی ہیں، ایک سے مرد اندر جا رہے ہیں، اور ایک پولیس والا کھڑا ہے، تو وہ وہاں پہ وہ پہلے سوئسائڈ بمبر جو ہے عورتوں کی سائڈ کی طرف کھڑا ہوا ہے، اور اس کے بعد وہ اس نے دیکھا کہ پولیس والا چیک کر رہا ہے اور وہاں پہ بدنظمی ہے، ایک قطار کی بجائے دو تین قطاریں بن کے لوگوں کو رہی ہے، تو اس میں آپ دیکھیں تھوڑی دیر بعد وہ گھوم کے اس طرف جاتا ہے جہاں سے مرد حضرات اندر داخل ہو رہے ہیں، اور پولیس والے کی نظریں دونوں طرف ہیں، عورتوں کی طرف بھی اور مردوں کی طرف بھی۔ اس چیز کا وہ ایڈوانٹیج لیتے ہوئے ایک شخص کی آڑ لے کے اس کے پیچھے سے اندر چلا گیا ہے، اور یہ سی سی ٹی وی فوٹیج جو ہے یہ اسٹیبلش کرتی ہے کہ اس کی انٹری کیسے ہوئی، اور اس بات کو بھی انڈیکیٹ کر رہی ہے کہ وہاں پہ کیا حالات تھے، اتنے زیادہ لوگ آ جا رہے ہیں اور ایک شخص کھڑا ان کی حفاظت پہ ہے۔ اس کی ایک فوٹیج اور بھی ہے جو کہ ابھی ریلیز نہیں کی گئی ہے، یہی شخص، یہ سوئسائڈ بمبر جو ہے، آگے جا کے ایک شخص سے اس کا ٹکراتا بھی ہے ہلکا سا، اور وہ شخص جس سے وہ ٹکراتا ہے وہ پولیس آفیسر ہے جس کی ڈیتھ ہوئی تھی، وہ پولیس آفیسر 7 کا نہیں ہے، وہ کہیں اور سے آیا ہے، اور وہ بھی ایک گائیڈ کی حیثیت سے آیا ہوا ہے۔ تو اس سے تو کلیئر کٹ یہ پتا چل رہا ہے کہ اس کی انٹری کیسے ہوئی سوئسائڈ بمبر کی، جی، کتنے بجے انٹر ہوا، اور کس طرح کے اس نے ایڈوانٹیج لیا جو کمزور سیکیورٹی تھی۔ اور اس میں ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ یہاں پہ جو سیکیورٹی کا مسئلہ ہوتا ہے نا، یہ بنیادی طور پہ یہ اوقاف والوں کی بھی ذمہ داری ہوتی ہے، اور اس لیے یہاں پہ اندر کی ذمہ داری جو ہے وہ اپنی دربار کے لوگ اور اوقاف والوں کی بھی ذمہ داری ہوتی ہے۔ لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیسی بدنظمی ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اور خودکش حملہ آور کلیئرلی پیچھے کھڑا ہوا ہے، عورتوں کی سائڈ سے آنے کی پہلے وہ سوچ رہا ہے، اور اس کے بعد پھر جب اس نے دیکھا کہ یہاں سے وہ نظر آ رہا ہے تو دوسری سائڈ سے وہ پیچھے چھپ کے انٹر ہو گیا اور جا کے اس نے دھماکہ کر دیا۔ بالکل، رانا جواد صاحب ہمارے ساتھ ہی رہیے، اسی معاملے پر بات کرتے ہیں، سی سی ٹی وی ویڈیو پر بات کرتے ہیں۔ ہمیں جوائن کیا ہے سابق ڈی آئی جی علاؤالدین عباسی صاحب نے۔ علاؤالدین صاحب بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا۔ کہیے گا، اب یہ جو ویڈیو سامنے آئی ہے اس میں بالکل یکسر مختلف صورتحال ہو گئی، کیونکہ پہلے یہ بتایا جا رہا تھا ابتدائی طور پر کہ برقع پہن کر حملہ آور داخل ہوا، گولڈن گیٹ سے داخل ہوا، اور پھر اس نے بلاسٹ کیا، لیکن یہاں پر تو یہ آسانی سے داخل ہو گیا، ایک پولیس اہلکار خواتین کو بھی دیکھ رہا ہے، مردوں میں بھی چیکنگ کر رہا ہے، بآسانی یہ تو اندر داخل ہوا، سیکیورٹی لیبس ہے واضح طور پر۔ دیکھیں، ہوتا یہ ہے کہ اگر وہ ایک آدمی ہے، وہاں جب ایسے مزارات پہ یا ایسے ہجوم کے اندر اتنی افراتفری مچ جاتی ہے کہ وہاں آپ چاہے 100 پولیس والے بھی کھڑے کر لیں گے تو آپ کو اندازہ نہیں ہوگا، اور پھر یہ ظاہرین ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں، یہ ان کو روکنا یا ان کی تلاشی لینا یا ان کو کچھ کہنا، ایک ہنگامہ دوسرا کھڑا کر دیتا ہے۔ تو وہ پولیس والا اگر ایک کھڑا ہوا تھا اور وہ تلاشی کے لے رہا تھا تو اس کو آپ سیکیورٹی لیبس نہیں کہہ سکتے۔ نہیں، تلاشی بھی نہیں لے رہا وہ، سر جو ہم ویڈیو دیکھ رہے ہیں اس میں وہ تو تلاشی بھی نہیں لے رہا، چلو ایک کھڑا ہوا تھا، ریسورسز کم ہے، وہ تو تلاشی نہیں لے رہا کسی کی بھی۔ نہیں، چلے وہ تلاشی نہیں بھی لے رہا تھا، لیکن اس کا ڈیٹرنس تھا نا وہاں پہ پولیس کا، جو وہ آگے پیچھے پڑ رہے تھے، تو اس وجہ سے جو ہے میں نے آپ کو پہلے بتایا، ایسے موقعوں پہ ایسی جگہوں کے اوپر تلاشیاں، کیونکہ لوگ بہت جذباتی ہوئے ہوتے ہیں، وہ ایک دوسرا انسیڈنٹ کھڑا کر دیتے ہیں۔ جی اچھا، اگر اس تناظر میں بات کی جائے کہ اب حالیہ دنوں میں دہشت گردی کے واقعات ہوئے ہیں، اور اس سے پہلے تو مزارات کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے، نہ واک تھرو گیٹس، نہ میٹل ڈیٹیکٹر اس کے پاس، نہ کوئی منظم نظام کے کیوں میں لوگ آئیں، زائرین
चेकिंग तो सर करा लेते हैं, ऐसे हमने भी मनाजिर देखे, आराम से चेकिंग करा के अंदर दाखिल हो जाते हैं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता इसमें। नहीं, मैं आपको लड़ाई झगड़े की बात आप नहीं समझ रहे। ये एक जज्बाती लगाव है लोगों का, जिसकी वजह से वो लोग अफरा तफरी के अंदर भागा, एक दूसरे के पीछे अंदर घुसने की कोशिश कर रहे। आपने अच्छा, ये बात समझ से बाहर समझ में आ रही है सर, क्योंकि कोई जज्बाती नहीं नजर आ रहा, कोई अफरा तफरी का माहौल नहीं है, 1 बाय 1 लोग आ रहे हैं और ये शख्स भी बहुत सुकून के साथ पहले खवातीन की तरफ से दाखिल होने की कोशिश करता है, फिर पता नहीं क्या इसे शायद कैमरे का पता है तो ये मर्दों की तरफ से एंटर हो जाता है। इतनी सी बात है, लैप्स वाज़े नजर आ रहा है इसमें। देखिए, चले आप मान लें लैब्स को भी, हम मान लेते हैं, चलिए लैब्स को भी, लेकिन बात ये है कि आप कितनी फोर्सेस लगाओगे। जहां आपने बात की वॉक थ्रू गेट्स और दूसरे, ये जिम्मेदारी है। ये वॉक थ्रू गेट्स लगे होते तो लोग बात थोड़ा डरते, और जो जगह बच रही थी जहां से वहां पुलिस वाले खड़े हो जाते। तो इस तरह तो आप सिक्योरिटी लैब्स कह सकते हो, लेकिन वैसे सिक्योरिटी लैब्स नहीं है, पुलिस ऑफिसर मौजूद है, नंबर 1। नंबर 2 चीज ये है कि जो जयसेवन की जगह है वहां मेरे ख्याल से इतनी नफरी नहीं होगी। ये दूसरा हमारा जो है पुलिस की कमी की वजह से वो आप सारे के सारे आपने वीवीआईपी ड्यूटीज पे लगा दिए पुलिस वालों को, ज्यादा मेजॉरिटी, तो वहां पर जो है मतलब अब्बासी साहब, आपका ये कहना है कि सिक्योरिटी लैब्स नहीं था। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है राना जवाद साहब। जवाद साहब, आपसे पूछना चाहूंगी, आपको भी कोई सिक्योरिटी लैब्स नजर नहीं आ रहा क्या? देखिए, इस तरह मेरा ख्याल है कि ये जो अभी इस वक्त जो फुटेज चल रही है उसमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात नजर आ रही है वो ये है कि एक शख्स है जो कि सहवन शरीफ के मज़ार तक पहुंचाया गया है। उसके हुलिये से लगता है कि वो वहां का लोकल नहीं है, और लेकिन वो फेमिलियर, ऐसा लग रहा है कि जैसे वो फेमिलियर भी नहीं है कि इसकी एंट्री कहाँ से है। वो खड़ा होता है, वो देखता है कि औरतें जा रही हैं, वहां से 2 लड़के जाने की कोशिश करते हैं, पुलिस वाला उनको रोक के कहता है कि आप इस साइड से आए जिस साइड से मर्द आ रहे हैं, और ये पीछे उनको देख रहा है और ये समझ रहा है कि अगर ये इधर से आएगा तो इसको भी रोक लिया जाएगा। और जहां से मर्द आ रहे हैं वो एक खुली सी जगह है और एक कतार नहीं है, ये 2 या 3 इकट्ठे दाखिल हो रहे हैं। तो इस चीज का वो एडवांटेज लेता है। शक्ल से वो लग रहा है कि वो गैर मुल्की है, और जो सिक्योरिटी जराए कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि ये अफगान है, ये वहां का लोकल नहीं है। और क्लियरली इसका जो इन्होंने जो इसकी शक्ल देखी है और जिस तरह इसका हुलिया देखा है उससे यही लग रहा है कि ये अफगान है, और ये उस एक आदमी के पीछे आड़ लेके अंदर दाखिल हो जाता है। देखिए, सिक्योरिटी लैब्स तो एक, इसको कैसे हम कह रहे हैं कि नजर भी आ रहा है और एक पुलिस वाला खड़ा है, लेकिन वो अपनी ड्यूटी जरूर अदा कर रहा है। हमें ये भी देखना चाहिए कि ये दरबार है, यहाँ पे दरबार जो है पाकिस्तान के अंदर वो महकमा औकाफ के पास होते हैं, जो उनका स्ट्रक्चरल सिस्टम है वो वहाँ के लोकल चला रहे होते हैं, जो मुंतजमीन होते हैं जी। तो ये बिल्कुल सही बात है कि अगर यहाँ पे एक वॉक थ्रू गेट लगा होता। राना साहब, ये जो फौरी तौर पर इंकशाफ कर दिया गया और इंफॉर्मेशन शेयर कर दी गई कि बुर्का पहन कर आया, कैसे ब्लास्ट किया, ये सारी बातें बिल्कुल मुख्तलिफ दिखाई देती हैं। इस वीडियो के आने के बाद तो सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ है। तो एहतियात की जरूरत नहीं है कि आप पहले ही बगैर इन्वेस्टिगेट किए इतनी बड़ी बड़ी बातें कर दे, दावे कर दे कि कैसे आया, क्यों आया, सब पता चल गया आपको। बिल्कुल, इससे एक और चीज इंडिकेट होती है कि जो हमारे लॉ इन्फोर्समेंट के ऑफिशियल हैं, या हमारे वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट के लोग हैं, या वहाँ पे दूसरी लॉ इन्फोर्समेंट के लोग जो है वो काफी बेहिसी से ये बात कर रहे थे। अगर आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं है और सुनी सुनाई बात है तो आप उसको मीडिया में ना लेके आए। अगर फर्ज करें कि ये सीसीटीवी फुटेज ना मिलती तो आज तक यही समझ रहे होते हैं कि कोई शख्स बुर्का पहन के आया है और वो किसी तरह से दाखिल हो गया औरत बन के, और एक अजीबोगरीब झूठी खबर जो थी उसको सच बना के पेश किया जाता। तो बिल्कुल सही बात है आपको कि हमारे जो लॉ इन्फोर्समेंट के लोग हैं उनको एहतियात करनी चाहिए। उनको जब तक कंक्लूसिव एविडेंस ना उनको नहीं बताना चाहिए। जैसे अभी आप ये देख रहे हैं, अगर हम इस फुटेज में वापस आए, अगर आप इस शख्स की तस्वीर भी देखें तो अभी तक जो सिक्योरिटी के इदारे हैं वो ये कह रहे हैं, पुलिस ये समझ रही है कि ये वहाँ का लोकल नहीं है और ये अफगान लगता है शक्ल से। और यहाँ पे जब वो आए तो वो फेमिलियर भी नजर नहीं आ रहा। वो देख रहा है कि औरत की साइड से कुछ मर्द जा रहे हैं तो उनको पुलिस वाला रोक रहा है, और फिर मर्दों की साइड पे वो देखता है कि 2-3 की रो निकल रही है तो उसमें से छुप कर निकल जाता है। ये वीडियो देख के आप बहुत सारे लेसन भी ड्रॉ कर सकते हैं, और इस चीज का भी मेरा ख्याल है कि एहसास होना चाहिए हमारे अरबाब इख्तियार जो है कि अगर हम एक अच्छा राना साहब, ये वीडियो तो सामने आई है और बहुत सी चीजें सामने आई है, लेकिन जो एफआईआर कटी है उसका क्या? उसमें तो पूरी सूरत हाल बताई गई है कि 3 लोग थे, 4 लोग थे, एक को उन्होंने गले मिलके भेजा। तो अब एफआईआर का क्या वो झूठी है?
नहीं, उसमें ये देखें FIR तो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट है, उसमें तो कहते ही फर्स्ट इंफॉर्मेशन है, वो लास्ट इंफॉर्मेशन नहीं है। लेकिन ये जरूर है कि ये शख्स, अगर ये बात सही है जो इब्तदाई ख्याल है इन्वेस्टिगेटर्स का कि ये अफगान है, ये गैर मुल्की है, ये पाकिस्तानी नहीं है, इस इलाके से फेमिलियर नहीं है, तो इसका मतलब है इसको कोई छोड़ के गया, कोई किसी ने इसको वहां पे रखा होगा, एक दिन रखा होगा, तैयारी की होगी, इसको ट्रैवल करके लाए होंगे, इसको मुशावर में रखा गया होगा, या जहां जहां जो रास्ता बनता है वहां पे रखा गया होगा। तो फैसिलिटेटर्स तो इनके होंगे और नेटवर्किंग भी होगी इसकी। और फिर जो छोड़ के गया है और जिसने पॉइंट आउट किया है, टाइम चूज किया है, उसको ये पता है कि इस वक्त बिजली गई हुई है, बिजली कटी हुई है वहां पे। ये भी आप देखें कि इतने लोग आ रहे हैं, बिजली कटी हुई है, एक पुलिस वाला खड़ा है। जी राणा साहब, ये भी कि FIR जैसे आपने कहा कि ये फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट होती है, लेकिन इतनी डिटेल से FIR में कि कांस्टेबल अब्दुल अलीम ने आवाज लगाई, उसको रोकने की कोशिश की, फिर उसने ब्लास्ट कर दिया, इतनी डिटेल्स जैसे कोई ये देख रहा हो अपनी आंखों से होता हुआ FIR में लिख दिया गया। और ये फुटेज जो आई है तो इससे तो बिल्कुल यकसर मुख्तलिफ बिल्कुल सूरत हाल। ये तो बिल्कुल नलायकी है, मैं आपको बताऊँ। अब नलायकी इसलिए भी है कि हमारी पुलिस इस तरह ट्रेन भी नहीं है कि वो दहशत गर्दी के जब मामला होते हैं, जब वाकयात होते हैं, तो उस पर रिएक्ट कैसे करते हैं। जाहिर है लोगों का प्रेशर होता है। 76 पीपल डाइड इन दिस, बल्कि 88 किसी आई थी, और उसके बाद 300 से प्लस जख्मी थे। एक पैनिक सिचुएशन थी, प्रेशर था, लेकिन पुलिस का ये बिल्कुल आपकी बात राणा जवाद साहब, आप हमारे साथ ही रहिए और साबिक DIG अलाउद्दीन साहब आप भी हमारे साथ रहिए। इस वक्त कराची में पुलिस ऑफिशियल्स मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं और इस वाकये में भी उसकी इन्वॉल्वमेंट रूल आउट नहीं की जा सकती, लेकिन अभी तक कोई ऐसी हकीकत नहीं। अच्छा सर, ये मुद्दत बमबार जो है ये कौन है और ये क्या लगता है? आप खुद देख लें। थैंक यू। IG सिंध मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे, उन्होंने क्या कहा ये आगे चलकर बताएंगे। लेकिन एक बार फिर जो वाकया पेश आया, एक दहशत गर्दी का बड़ा वाकया सेवन में, जिसमें 88 अफराद की जानें चली गई, 300 अफराद जख्मी हुए। पहले एक बिल्कुल मुख्तलिफ कहानी बताई गई, फौरी तौर पर यह इंफॉर्मेशन शेयर की गई कि एक शख्स था जो कि गोल्डन गेट से दाखिल हुआ, बुर्का पहनकर आया, एक खातून का उसने लिबादा ओढ़ा हुआ था, फिर उसको एक कांस्टेबल ने आवाज भी दी, उसने ब्लास्ट कर दिया। लेकिन इस फुटेज के आने के बाद, CCTV वीडियो के आने के बाद बहुत से सवालात खड़े हो गए हैं। यही सवालात हम भी उठा रहे हैं। राणा जवाद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं और साबिक DIG अलाउद्दीन अब्बासी साहब भी हमारे साथ हैं। अलाउद्दीन साहब, आप ये कहिएगा कि होता क्या है जब कोई वाकया हो जाए, उसके फौरी बाद इंफॉर्मेशन गैदर किए बगैर, CCTV फुटेज देखे बगैर, सिर्फ प्रेशर की बुनियाद पे कि प्रेशर से किस तरीके से बचा जाए, फौरी तौर पर ऐसी गैर मुसद्दिका इत्तलात दे दी जाती है मीडिया को भी, ताकि थोड़ा सा बच सके, थोड़ा सा वक्त मिल जाए? कि नहीं, ये देखिए पहले जैसे राणा जवाद साहब ने भी कहा, ये फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट कहलाती है। जब कोई पुलिस अफसर वारदात हो जाती है, वहां पहुंचता है, तो वहां लातादाद लोग बाग जमा होते हैं। उनकी अपनी अपनी सबकी जो है बातें होती हैं कि जी उसने यूं देखा, उसने यूं देखा, उसने यूं देखा। तो उस वक्त जो है उस वाकयात उन लोगों की बयानात के तहत जो है वो FIR लॉन्च कर ली जाती है। और या खुद जाके जो है, अगर बहुत सारे लोग बाग हैं और इंसिडेंट एक है, जैसा 80-82 आदमी है। ठीक, आपसे भी हम बात करेंगे, आपका व्यू जानेंगे। आप लोग हमारे साथ ही रहिएगा। इस वक्त हम रुख करेंगे एक बार फिर कराची का, जहां पर अब से कुछ देर पहले AG